کا اے ہماری درس کا آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ آپ وہیں پر مقیم ہو جائیں. ابھی ایک سلام کو پڑھیں گے جناب محمد علی. آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ بیٹھ جائیں. میں نے کیسے حسین کو مارا، جب ہوا میں سوار سینے پر، لب ہلانے لگا تیرا مولا، پیاس میں دعائیں دینے لگے، مجھ کو شبیر ایسا لگتا تھا، ہے میں نے ہونٹوں پہ کان رکھ کے سنا، وہ تو غازی کو یاد کرتا تھا. شمر کہتا تھا مت سنو مختار، میں نے کیسے حسین کو مارا، کیسی غربت تھی بن زہرا پر، ہر دیکھتی تھی سکینہ یہ منظر، میرے ہاتھوں میں شہد داڑھی تھی، میں رلاتا رہا اسے ہنس کر، ہائے لاش عباس بھی تڑپنے لگا، جب تماچا حسین کو مارا. شمر کہتا تھا مت سنو مختار، میں نے کیسے حسین کو مارا، اس کی آنکھوں میں جان کیا تھا میر، ہے کوئی نظر نہیں ملاتا تھا، میں بھی آنکھیں نہ اس کی دیکھ سکا، اس لیے چہرہ اس کا پھیر دیا. ہاں یہ وجہ تھی جو پشت گردن سے تیرا مولا کو ذبح ہمیں نے کیا. شمر کہتا تھا مت سنو مختار، میں نے کیسے حسین کو مارا. ہے وہ جو ایک نہر ہے وہاں جاری، تیرا مولا وہاں تھزی سے گرا، عمر سعد نے کہا مجھ سے قتل اس کو نشیب میں کرنا، ہے میں یہاں قتل
نگاہ تک مختار اس کو زلفوں سے کھینچ کر لایا شمر کہتا تو مت سنو مختار میں نے کیسے حسین کو مارا لا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وسيدنا ومولانا وطبيب نفوسنا بالقاسم محمد صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين اللهم واحشرنا مع الحسين في يوم الورود أما بعد فقد قال إمام الحسين في يوم العاشوراء هل من ناصر ينصرنا هل من مغيث يغيثنا هل من معين يعيننا نعرہ صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد محبان اہل بیت شیعان حیدر کرار عزاداران ابا عبداللہ الحسین عاشقین مظلوم کرب و بلا غریب زہرا شہید کرب و بلا مولا حسین علیہ السلام بے صدقہ چاردہ معصومین اللہ تمام عزاداروں کو سلامت رکھے الہی آمین اپنے حفظ و امان میں رکھے الہی آمین ان کی توفیقات میں اضافہ کرے الہی آمین زیادہ سے زیادہ اس عظیم کار خیر کو انجام دینے کی توفیقات عطا فرمائے الہی آمین عزیزو ہر ایک کی نصیب میں نہیں ہوتا کہ وہ حسین کا خادم بنے کم از کم نصیب ایسا ہونا چاہیے جو جبرائیل جیسا ہو جو عرش کو چھوڑ کر خانہ سیدہ میں خدمت گزاری کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتا ہو اور اس ساری کائنات میں ہم وہ قوم ہیں جو اس خدمت کو انجام دے رہے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے ہمارے مائیں قابل تحسین ہے کہ انہوں نے ہماری تربیت اس انداز میں کی ہے کہ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا بلکہ ہوش سے پہلے ہم نے حسین کو پہچانا ہماری غذائیں ہماری فکر ہماری تربیت ہماری مائیں اپنی گودوں میں لے کر امام بارگاہوں میں پہنچ کر کی ہے کبھی عباس کے علم کے سائے تلے تو کبھی مولا حسین کے تابوت کے زیر سایہ آج
मजमा कितना है मुझे नहीं पता मालूम, लेकिन ये जो जुलूस है इसका नाम काफी है और ये जरूरी भी है, वाजिब भी है। लब्बैक या हुसैन जुलूस का नाम दिया आपने, बल्कि ये जुलूस नहीं है, ये फिक्र है, ये हुसैनियत की आवाज है। ये लब्बैक या हुसैन ये कोई एक नारा नहीं है, बल्कि एक ऐसी ताकत है कि जब ये आवाज कोई हुसैनी बुलंद करता है तो बड़े बड़े नमरूदों के काखे हिल जाते हैं। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। আমি কেন বলছি এই কথাটি ভালোভাবে মনে রাখবেন। এই লব্বাইক ইয়া হুসেন এটি আমাদের তৈরি না, আমাদের রক্তে এসে গিয়েছে, কারণ এটি হুসাইনের আওয়াজের জবাব, হুসাইনের ডাকের সাড়া। হুসেন রোজে আশুর যে ডাকটি দিয়েছিলেন কারবালাতে, কে হাল মিন নাসিরিন ইয়ানসুরুনা, কেউ আছে আমার মদদ করবে, कोई है जो मेरी मदद को आगे बढ़े, तो उसका जवाब क्या होना चाहिए? लब्बैक, हम हाजिर हैं, हम आना चाहते हैं मौला, यही तो उसका जवाब होना चाहिए। इसीलिए मौला ने अपनी जंग को करबला में तमाम नहीं किया, जारी रखा। वरना मौला हुसैन अपनी शहादत के बाद इस जंग को तमाम कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मदद तलब की। ये इस बात की सबूत है, ये जंग कयामत तक के लिए है और आज भी हम उसी मैदान में खड़े हैं, उन्हीं जालिमों के सामने खड़े हैं। ये जालिम नाम और चेहरे बदलते हैं, किरदार इनका नहीं बदलता, इनका कैरेक्टर नहीं बदलता। नाम मुख्तलिफ होते हैं इनके चेहरे तो मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन किरदार वही 61 हिजरी वाला यजीद जैसा है। यजीद ने भी इस्लाम को मिटाने के लिए आले रसूल को खत्म करना चाहा, और आज का यजीद इस्लाम को मिटाने के लिए उन्हें पता है सिर्फ तशय्युअ को अगर खत्म कर दिए तो बाकी तो हमारे गुलाम बन चुके हैं। ऐसा इस्लाम, ऐसे मुसलमान मुझे कबूल नहीं है, क्योंकि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, लेकिन किसी भाई के कत्ल पे कोई भाई अगर खुश हो तो समझ लेना ये भाई नहीं है, दुश्मन है। तो आज सारे दुनिया के फिरकों में बटे हुए मुसलमानों को देखिए और एक करबला वालों को देखिए। कल भी इनको यजीद नामंजूर था, आज भी नामंजूर है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अली, या अली, या अली। इसीलिए अजीजों, आज बड़े शान और शौकत के साथ मोमिनीन मुर्शिदाबाद ने बहुत अच्छे मौजू पे, यानी मैं खुद एक आलम दीन हो के भी मैं ये सोच रहा हूँ मैं भी इसी नाम से अपने यहाँ एक जुलूस करूं, ताकि लब्बैक या हुसैन का मतलब लोग समझने लगे। लब्बैक का मतलब कोई नारा नहीं है, एक अकीदा है, एक वादा है, एक बैत है हुसैन से, जो टूटना नहीं चाहिए, किसी भी हाल में नहीं टूटना चाहिए, है कि नहीं? क्योंकि इमाम के हलमिन का जवाब लब्बैक है। आपने लब्बैक भी बोल दिया और वक्त के यजीद के सामने सर झुका लिया, तो ये आपके लब्बैक का कोई मतलब नहीं रह जाता। लब्बैक का मतलब क्या है? लब्बैक या हुसैन का, मौला हमारी फैमिली, हमारी जाने, हमारी दौलत, सब कुछ आप पे कुर्बान है, और जब मौका मिले आपने कुर्बान भी अगर कर दिया, तभी तो हम कह सकते हैं जो वादा करते हैं ज़ियारत वारसा में, या लैतनी कुन्तु माकुम फाफूज़ माकुम, ऐ काश मौला अगर रोज़े आशूर हम मैदान करबला में होते तो आपके ऊपर कुर्बान हो जाते। अजीजों,
सोचिए आज 1400 साल बाद मुर्शिदाबाद की सरजमीन से जो लब्बैक या हुसैन की सदाएं बुलंद हुई है और पूरे दुनिया के चप्पे चप्पे से लब्बैक या हुसैन की सदाएं जो बुलंद हो रही है, ये गरीब ज़हरा की उस गुर्बत में बुलाई गई उस आवाज का जवाब है। सोचिए, कलमा गो के सामने, असहाब और उनके औलादों के सामने ज़हरा का बेटा मदद मांगता है, कोई नहीं आता। कोई तलवारें मारता है, कोई भाले मारता है, कोई तेल बरसाता है, कोई पत्थर उठा मारता है। मेरे हुसैन को मेरे हुसैन बुलाए जाते हैं। कोई है जो मेरी मदद को आगे बढ़े, कोई है जो मेरी नुसरत को आगे बढ़े। अजरुकुम अल्लाह। लेकिन आज भी इस कायनात में हुसैन की वो सदाएं हमारे कानों तक पहुंच चुकी हैं। इसीलिए हम लब्बैक या हुसैन बोल के ये कहते हैं, मौला हम करबला में तो नहीं थे, लेकिन आज आपकी आवाज पे लब्बैक बोल के ये सबूत देते हैं, ए हुसैन अगर हम करबला में होते तो आप पर कुर्बान हो जाते, खुद को आप पर कुर्बान कर देते, अपनी औलादे आप पर कुर्बान कर देते। अजरुकुम अल्लाह। जब आपने लब्बैक या हुसैन की सदाएं बुलंद की है तो उसने हुसैन यकीनन आपकी इन आवाजों को कबूल फरमा कर जब उनका ज़हूर होगा हुज्जत आखिर का, तो यकीनन इस लब्बैक या हुसैन की हुर्मत को देखते हुए हुसैन का वारिस अपने असाब व अंसार में हमें शामिल करेंगे। सयालमुल लज़ीना ज़लमू अय्युल क़ल्बिन यनक़लिबून। अज़ीज़ों, आज के इस जुलूस में सबको शरीक रहना चाहिए। एक कूपन बनाया गया है जिसमें 2 आदमी को ज़ियारत अब अब्दुल्ला इब्न हुसैन के लिए भेजा जाएगा, जिसकी कीमत 200 रुपया है। आप अपना नसीब आजमाएं। अगर आपका नाम नहीं भी आता है तो उस ज़ायर के भेजने में आप शरीक हैं, अजर आपको मिलेगा। ये एक तरीका होता है हम गरीबों के बीच। कोई अकेला तो जा नहीं सकता, बल्कि हुसैन के हजारों गरीब मिल के अगर किसी एक का बुलावा जो हुसैन की तरफ से वो चला जाए और उसके सफर के अखराजात में अगर हम 200 रुपया के शरीकदार रहे तो इससे बढ़कर मेरी खुशनसीबी क्या हो सकती है। करे किसे सुना ये हाल दिल हमारा कौन है यहाँ, बस आपका मदद करे। अली के हक का वास्ता है बीबी फातिमा, मदद करे मदद करे। अली के हक का वास्ता है बीबी फातिमा। लबों पे बस यही दुआ है बीबी फातिमा, मदद करे मदद करे। अली के हक का वास्ता है बीबी फातिमा, मदद। अली के हक का वास्ता है बीबी फातिमा। मरीज ला इलाज को दिखाई दे ये मौजिज़ा, बेहक़ आबिदे हज़ी अता करे उसे शिफा। या राज़िया या मर्ज़िया तुम्हारे हाथ में शिफा है बीबी फातिमा, मदद करे मदद करे। अली के हक का वास्ता है बीबी फातिमा, मदद करे मदद करे। अली के
حق کا واسطہ ہے بی بی فاطمہ